is the case, and God, how he will be able to tolerate the discrimination among human beings if somebody is thrown away from the society, kept aloof from the society, and only some people get advantages of so many things in the society? God never feels happy at all. This is the thought of Ramanujacharya, which was observed by him in Vedic scriptures, in Ramayana, in Bharata, in Bhagavad Gita, in all the Puranas. Ramanujacharya Swami was having a guru called Mahapurna. He had a beautiful friend who was a Harijan, but very great devotee. Because of his devotion, the Mahapurna accepted him as his soul friend. And that friend, because he was old enough, while leaving his body, he said, "My friend Mahapurna, let this purified body not touched by unpurified people." Mahapurna understood. And when he left the body, a Harijan, Mahapurna Swami, being a Vedic scholar, did his final rites to that great soul. You can understand what happens then. All other Pandits of the society started scolding Mahapurna and said, "We will excommunicate you from the society." But Mahapurna did not care. He did the final rite to him. And Ramanujacharya came to know about this. And so many people came to Ramanuja and said, "Hey Ramanuj, you wanted Mahapurna be your guru, and he is doing all kinds of nonsense activities. He cremated a Harijan. Is it right? You are accepting him as your guru." Ramanuja said, "Let me find out the facts, and then I'll get back to you." Mahapurna Swami did something probably with a reason. That's why, give me a little time. Ramanuja went to Mahapurna Swami and did namaskaram to him and said, "Swamiji, all these people are talking like this. You did the cremation to that person. There must be some reason. May I know the reason? If you think that I am fit enough to know, please." Then Mahapurna Swami, with a smile on his face, "Ramanuja, the person is a very great devotee of Lord Mahavishnu. He is a nice devotee. And not only that, he was actually blessed by my guru with mantra and samskaras. Body is not the deciding factor of the greatness of a person. जन्म कारण नहीं है मान्यता की, ज्ञान कारण होता है। जिस कैस्ट में जन्म लेता है वो कैस्ट नहीं कारण होता है मान्यता की, कुल नहीं गुण मान्यता का स्थान होता है। इनमें गुण हैं, आचार्य की कृपा है, अंदर भक्ति है, तो इसका संस्कार करने में क्या नुकसान है। रामानुज, मैं आपको एक वास्तव बताता हूं। रामचंद्र के बारे में आप सब तो जानते हैं ना, मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। सब लोग उनको मान्यता बहुत बहुत देते हैं। ऐसा रामचंद्र भगवान अपने पिता का संस्कार वो नहीं किया।
नहीं कर पाया। एक वल्चर, एक गिद्ध को, एक पक्षी को अपने पिता जैसा संस्कार किया और मोक्ष भी दिया। सुना है ना? क्या ये आदमी अभी जो जिसका संस्कार मैंने किया, ये जटायु एक वल्चर से भी कम है क्या? और मैं क्या रामचंद्र जी से बढ़कर हूं क्या? तो इनका संस्कार करने में क्या हर्ज है, क्या नुकसान है? But Ramanuja understood then, and he got a tremendous inspiration about the recognition of any person belong to any caste. So caste, creed, color are not barriers for one person to be worshipped, to become great person. It is only his practice, it is only his devotion that decides one whether he is worth enough to be respected or not. रामानुज स्वामी जी की प्रेरणा अपने गुरु से मिली है, वैसा वो समता का मूर्ति बने। रामानुजाचार्य स्वामी अपना जीवन में ऐसा एक नहीं कई प्रकार की समता उन्होंने अनुष्ठान में करके दिखाए, और उसी अनुष्ठान को सारे उस समय में रहने वाले राजा लोग भी मान लिए, और उस कालखंड में रहने वाले पंडित लोग, जिसको बोलते हैं वेद पाठी लोग जो होते हैं, वो भी मान लिए थे। जब रामानुजाचार्य स्वामी समाज को ऐसी दिशा दिखाएं, भगवान को तृप्त बनाने के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए ऐसे संघ संस्कर्ता बने हैं, उनको हम क्या करके कृतज्ञता दिखाएंगे, किससे दिखाएंगे? एक सवाल आप पूछ सकते हैं, when Ramanuja in those days eliminated the discrimination among the caste and creed, why it is existing even today? The answer is very straightforward and simple. Whatever samskaras done by Ramanuja were in practice even today. But in today's scenario, the visibility is less. It is not because there is some kind of defect. It is the British rule in this country. From 17th century onwards, they know how to divide the society. They know how to ruin the society. They know how to kill the culture. And because of them, that means after 600 years of Ramanuja's reformations, again they brought out those old taboos into existence. Unfortunately, even today we are living with them. This time is Ramanuja's 1000th year. What would be the best time than this to talk about those reforms which were practiced and gave a beautiful lineage to practice those kind of good activities in the society. Keeping that in view, here Ramanuja's beautiful murti having a height of 216 feet is created here. And also he lived for 120 years, remembering his grace honors for that long period. A gold Ramanuja Swami also appeared here using 120 kgs of gold. My friends, remember, Ramanuja never wanted a statue for him.
Ramanuja never wanted a gold statue for him. Such people never become gurus. Those who demand their puja, their greatness, their respect to be followed, accepted by everybody. And Ramanuja Swami never wanted such kind of recognition at all. But what about us who got benefit of that? We need to have a kind of gratitude, isn't it? कृतज्ञता मूल लक्षण होता है ज्ञान रहने वाले मानव का। कोई अपने हाथ से पेन गिर गया तो कोई उठा के दिया तो थैंक यू सर बोलते हैं। अरे तुम्हारा ही तो पेन है वो। जब तुम्हारा चीज तुमको कोई उठा के दिया तो उनको थैंक्स बोलता है। जो खो गए वाले आत्मा का ज्ञान फिर हमको देकर समाज का तनाव देखते हुए उसमें रहने वाले सारे दुराचार भ्रष्टाचारों को जिन्होंने दूर किया और मानवता का मोल बढ़ाया, ऐसे आचार्य को हम कृतज्ञता के रूप में थैंक्स कहते हुए क्या कर सकेंगे? ये अपना कर्तव्य है, उनका डिमांड नहीं है। और इसीलिए जो मिलने वाले चीज़ों में अत्यंत मूल्यवान चीज़ जो होता है वो उनको अर्पण करने का मन लगता है अपना। बंधुओं, यहाँ निर्माण किया हुआ मूर्ति के लिए केवल कोई करोड़ों करोड़ों ला के दिया नहीं, गांव गांव में रहने वाले एक एक हरिजन, समझे, अपना कष्टार्जित पैसों को देकर इस मूर्ति के निर्माण करवाए। यहाँ मूर्ति निर्माण के लिए जब हम आयोजन लगाया तब हमने एक ही मांग लोगों के सामने रखा, जीवन भर अपने लिए कमाओ और आनंद का अनुभव करो। जीवन भर 1 महीना मानव का अस्तित्व का स्थापना करने के लिए आप स्वयं नरक जाने के लिए भी जो पीछे नहीं पड़े थे, ऐसा आचार्य का वैभव लोगों को बताने के लिए 1 महीने का कष्टार्जित उनके लिए दे दो। 1 महीने का। बंधुओं, उस पुकार को पहले सुना एक पुलिस ऑफिसर और अपना इनकम उस समय में 62,000 था, वो दे दिया। जब हम एक छोटे सी गांव करीमनगर जा रहे थे, वहाँ पर गांव का बाहर हम आधे रात करीब 11:30-12 समय में अपने गाड़ी में चलते थे। बड़ा बस है अपना, गाड़ी में चलते थे। शहर में पहुंचने वाले थे। शहर के बाहर हमारे गाड़ी को 2 लोग रास्ते में बीच में रहकर रोक दिए। नक्सल हो सकते हैं, तो हम तो गाड़ी तो रोकना पड़ा। तो वो तो सीधा साधा आदमी था और वो गाड़ी में आ गया। महाराज, मेरा गांव आप आना है, वो पूछा था। अरे हमने पूछा आप कहाँ रहते हैं? स्वामी यहाँ से 10 किलोमीटर आगे हैं। मैं तो एक छोटा सा दलित हूँ, कल सुबह भी आपके पास हम आ सकते हैं, परंतु आपको समय नहीं मिलेगा। इसीलिए अब एक बार मेरे छोटी सी झोपड़ी में आप पदार्पण करने के लिए मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। हमने देखा आधे रात हो गया भाई, अभी तो 12 बज रहा है। लोग बोलते हैं जब अंधेरा होता है आधे रात के बाद एक चोर निकलता है, ऐसा कुछ गाना है। अरे हमको चोर मानेंगे अभी आधे रात में तुम्हारे घर में आए तो? नहीं नहीं स्वामी जी, प्लीज़ 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 करके उन्होंने मांगा।
बंधुओं, मैंने उनका गांव में घर तक पहुंचने के लिए 12:30 हुआ, तब भी वहाँ बाजा मेला ताला लगाकर कुछ लोग थे उनका घर के सामने। वो तो छोटा सा एक झोपड़ी, एक हट, तो घर के अंदर लेके गया और नमस्कार किया। महाराज, मैं कष्ट के लिए बहुत दुखित हूँ, आपको बहुत कष्ट दिया, परंतु स्वामी आपने एक अनाउंसमेंट किया, 1 महीने का तुम्हारा पैसे दो करके रामानुज स्वामी जी के लिए। मैं रामानुज स्वामी जी का पंथा में हूँ, मैं भी एक वैष्णव हूँ। मैं तो एक खेती चलाने वाला एक नौकर हूँ, मुझे मंथली सैलरी नहीं होता है, फिर भी 1 साल में करीब 1 लाख तक मैं कमाता हूँ। तो आपका जो अनाउंसमेंट देखने के बाद 1 लाख को मैंने 12 भाग किया और एक में करीब 9,000 आया। तो मैंने सोचा रामानुजाचार्य स्वामी जी मूर्ति निर्माण के लिए मैं कम से कम 10,116 पैसे दूं। वो पैसे लाकर दे दिया। वो एक हरिजन था। तो हमको आश्चर्य लगा, क्या श्रद्धा है उनकी, कितनी श्रद्धा है उनकी। बंधुओं, ऐसे व्यक्तियों के पैसे से इस मूर्ति का निर्माण यहाँ पर हुआ है। जगह जगह जाकर, मैं तो सन्यासी हूँ ना, मेरे पास तो पैसे नहीं रहता है और मैं तो छपा भी नहीं सकता। चोरी करना बहुत मुश्किल बात है। भीख तो मांग सकते हैं और उसके लिए अधिकार है। तो हम जगह जगह पे गया और लोगों को बताया, जो समता का मोल जानते थे, जो इक्वालिटी के बारे में विश्वास करते थे, इक्वालिटी को समाज में देखना चाहते थे, ऐसे लोग अपना कष्टार्जित धन एक एक पैसा इसमें जोड़ दिए हैं। बंधुओं, अमेरिका भी हमने गया, वहाँ भी ऐसे अनाउंसमेंट किया। जब हम शिकागो में थे, वहाँ पर भी ऐसा छोटे से अनाउंसमेंट मैंने किया। तब ऑडियंस में से एक छोटी सी लड़की आई, 6 साल 8 साल का बच्ची। उनको चश्मा इतना मोटा था, यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ था, बात करना मुश्किल है। अपने पिताजी का हाथ पकड़कर आई और पिताजी को कुछ सौंया की। तो पिताजी अनाउंस किए, इनका पिग्गी बैंक जो है उसमें रहने वाले पैसे पूरा रामानुज स्वामी जी को देने के लिए मेरी बच्ची कह रही है, और वो अभी $5,000 है, वो हम रामानुज स्वामी जी के लिए दे रहे हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर इस कार्यक्रम का अनुभव करने के लिए अमेरिका से भी हमारे यूथ बहुत यहाँ पर आए हैं। ये सब एक एक वहाँ पैसे जोड़ जोड़ कर, और यहाँ होनी है, वे आपके पास रहने वाले लॉकर्स में रखने वाले जो भी चीज़ें हैं उनको उठा कर यहाँ सोने के मूर्ति निर्माण में जोड़ दिए थे। वैसा यहाँ पर रामानुज स्वामी जी का सोने की मूर्ति और ये 216 फुट वाला
समता मूर्ति भी यहाँ पर आविष्कार हुए थे। ये तो कृतज्ञता का चिन्ह है। दिस इज एन iconic statue of equality. At the same time, this is the result of the heartfelt gratitude of the people who believed in the value of equality that should exist in this society. रामानुज स्वामी जी महाराज उसको करके दिखाए। हमारा गुरुजी बड़े जीयर स्वामी जी भी उसी बात को हमको सिखाएं, तो हम भी वही पथ पे चलते हैं। उसी कारण यहाँ पर एक अंधों के लिए एक कॉलेज चलता है हमारा, probably the only college in India where boys and girls studying in that from, of course, from different parts of the states, they study on computers, not braille computers, regular computers, normal computers. There is a technique probably very few of us might have paid attention. आपने देखा होगा कंप्यूटर में या कीबोर्ड में F एंड J में 2 डॉट्स होते हैं, कभी देखा? आपके टाइपराइटर के कीबोर्ड में F में और J में 2 डॉट्स होते हैं। ये डॉट्स ऐसे लोगों के लिए उस समय में वो तैयार किए थे जो आँखों के बिना रहते हैं, जो अंध बच्चे होते हैं, उन लोगों के लिए। So here from 11th grade onwards, from 11th class onwards, 11th, 12th and undergrad, all these classes are studied by the students coming from different parts of the places, states. They learn English, they learn computer. Only simple technique is they put their fingers